Hello Vivekians, welcome back to Manmeet Ma'am's class once again. In the last class, I had explained 8 rules for converting singular nouns to the plural ones. Hope these rules are clear to you. For those who have any problem or any queries, a quick recap. Rule number 1. Add s to form the plural of most nouns. ज़्यादातर nouns में हम लोग s लगा के उनका plural बनाते हैं. Number 2. For nouns that end in s, double s, x, ch और sh हम क्या करते हैं? es add कर देते हैं. जैसे one beach, many beaches, es add कर देंगे. Rule number 3. For nouns that end in y with a consonant before the y, remove the y and add ies. जैसे one enemy, many enemies. Rule number 4. For nouns that end in y with a vowel, A-E-I-O-U. Before the Y, add S. हम इसमें simply S add करेंगे. जैसे one stingray, 5 stingrays. For nouns that end in F or FE, हम लोग क्या करते हैं? N में उनके VES लगा देते हैं. Rule number 6. For nouns that end with a consonant before O, add ES. जैसे one hero, 10 heroes. For nouns that end in Z, add ZES. जैसे one quiz, several quizzes. And number 8, जो exceptions थी हमारी, जो हमें याद करनी होती हैं, one child, 6 children, जो हमें हमेशा याद ही करने पड़ेंगे. There is no rule applicable to these. और जो बिल्कुल सेम रहते हैं, one fish and 2 fish. चाहे singular हो, चाहे plural हो, they remain the same in both the conditions. One fish, 2 fish. One deer, 5 deer. Today we shall start with a new topic, tenses. Now open your course books to page number 77, Building Blocks Tenses. The objective of today's work is to recognize different types of tenses and use the simple past tense correctly. I had already given a brief description of tenses in the last chapter also. Let me remind you. सबसे पहले, what are tenses actually? Tenses indicate the time of action or an event. Or we can say, tenses are words that are used to refer time. Time कैसा? जो बीत चुका है, या जो चल रहा है, या जो आएगा. That is आने वाला time. Okay? There are mainly 3 types of tenses. मैंने आपको पहले भी बताया था. Present tense, a verb denoting an action taking place in the present time is said to be in the present tense. यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, जो है वाले words होते हैं, होता है, होती है, जो है वाले होते हैं, right? हो रहा है, हो रही है, ये सारे के सारे हमारे present tense में आते हैं. That is कि जो time चल रहा है वो time present tense होता है. Past tense, a verb denoting an action that has taken place in the past. कि कोई action पहले हुआ था, तो था, थे, थी वाले जितने भी हमारे sentences होंगे ये हमारे past tense में आते हैं. And future tense, a verb denoting an action that may take place in the future is said to be in the future tense. कि कोई action future में होगा, तो होगा, होगी वाले जितने भी sentences होते हैं हमारे वो future tense में आते हैं. Now come back to page number 77 of your course book. Tenses. Verbs change to let us know whether an action has already happened, happens now, or is yet to happen. अब आपको पता है कि हमें टेंसेस का हम लोग कैसे पता चलाते हैं? वर्ब्स के थ्रू पता चलता है. वर्ब्स हमारे चेंज होते हैं जब एक्शन का बताना होता है कि वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, यानी कि वो पास्ट में हो चुका है, तो हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. हैपन्स नाउ, अगर वो प्रेजेंट टेंस का होगा यानी कि वो अभी हैपन हो रहा है वो एक्शन, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म लगती है. एंड अगर इज येट टू हैपन, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. इससे हमें पता चलता है कि हमारा एक्शन या तो हो चुका है, दैट इज इन द पास्ट टेंस, हो रहा है, दैट इज इन द प्रेजेंट टेंस, या अभी आगे होगा, दैट विल बी इन द फ्यूचर टेंस. नाउ लुक एट दिस टेबल. पास्ट टेंस, ही प्लेड फुटबॉल yesterday. प्रेजेंट, he plays football every day. एंड फ्यूचर, ही विल प्ले फुटबॉल टुमारो. अब देखो इसमें वर्ब कौन सा है बेटा? प्ले है.
ओके सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस का, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, वो रोज़ फुटबॉल खेलता है। ओके तो इसमें हमने देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी हुई है। पास्ट टेंस अगर हम देखते हैं, ही प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, उसने कल फुटबॉल खेली थी। ओके तो इसमें हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करी है। और फ्यूचर टेंस में अगर हम देखते हैं, ही विल प्ले फुटबॉल टुमारो, वो कल फुटबॉल खेलेगा। तो दैट इज विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। सो हमेशा हमें टेंसेस का पता कैसे चला, हमें वर्ब्स की जब फॉर्म चेंज हुई तब हमें पता चला कि येस वेदर दिस इज पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और द फ्यूचर टेंस। You already know about verbs and the difference between simple present, I run, and the present continuous tense, I am running. अब आपको मैंने पिछले चैप्टर में डिफरेंस समझाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ आई रन, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़ एम आर और वर्ब में ing ऐड करते हैं। तो हमें वर्ब की फॉर्म से पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है। नाउ दिस वाज द केस व्हेन द मेन वर्ब इज गिवन। अगर हमें अब मेन वर्ब दिया ही ना हो और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स दिए हों, तब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। नाउ लेट्स लुक एट सम मोर टेंसेस। लुक एट दिस टेबल। देयर आर 3 कॉलम्स गिवन इन दिस टेबल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देखो पास्ट टेंस में येस्टरडे वॉज मंडे, I was 7 years old last year. Last month was March. Yesterday was Monday. कल Monday था. I was 7 years old last year. मैं last year 7 years की हो गई थी. Last month was March. Last month March था. इन sentences में main verb दिया ही नहीं हुआ। अगर मेन वर्ब नहीं दिया होता, वी ऑलवेज लुक एट द हेल्पिंग वर्ब। आप देख सकते हो इसमें वॉज लगा हुआ है। वॉज या वर हमेशा पास्ट टेंस में लगाए जाते हैं। ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर मेन वर्ब नहीं दिया हुआ तो वॉज एंड वर आर द वर्ड्स विच विल बी यूज्ड इन द पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस, टुडे इज ट्यूसडे, आई एम 8 years old this year, दिस मंथ इज अप्रैल। टुडे इज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है। आई एम 8 years old this year, मैं इस साल 8 years की हो गई हूँ। दिस मंथ इज अप्रैल, ये मंथ अप्रैल है। प्रेजेंट टेंस में when the main verb is not given, we are using the helping verbs is, am and are. Is used with the singular ones, am is used with I, and are is used with the plural ones. Now look at the last column, future. Tomorrow will be Wednesday. कल Wednesday होगा. I will be 9 years old next year. मैं अगले साल 9 years की हो जाऊंगी. Next month will be May. अगला month में होगा। आप देख सकते हैं फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए जब मेन वर्ब नहीं दिया हुआ तो वी यूज विल बी। ओके, लेट मी सम अप। जब मेन वर्ब्स नहीं दिए होते तो हम हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू पता चलाते हैं कि वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। पास्ट टेंस में वी ऑलवेज यूज वॉज एंड वर। वॉज सिंगुलर के साथ यूज होगा एंड वर हमारा प्लूरल के साथ यूज होगा। प्रेजेंट टेंस में वी यूज इज, एम एंड आर। इज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, एम हमारा हमेशा आई के साथ यूज होता है एंड आर हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है। एंड इन द फ्यूचर टेंस वी ऑलवेज यूज विल बी व्हेन द मेन वर्ब इज नॉट गिवन। Now let us study simple past tense in detail today. Okay? The past tense tells us that an action has already happened some time ago. Past tense हमें क्या बताता है कि एक action already हमारा complete हो चुका है. It has completed. For example, Mr. Crab danced on the sand last night. Mr. Crab ने dance किया था last night sand पर. किया था. He played hide and seek with his friends on the beach. उसने hide and seek अपने friends के साथ बीच पर खेला था. For most verbs, you can form the past tense by adding ed at the end. ज़्यादातर verbs में हम लोग ed लगा देते हैं उसको past tense में convert करने के लिए.
ओके, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. ये हमारे नॉर्मल वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिसमें हम लोग ed लगाते हैं एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द पास्ट टेंस. Examples you can see here: walk, walked. अब walk is the first form of the verb. जब हमने इसे past tense में convert करना होता है तो we change it into the second form of the verb. और normally verb की second forms कैसे बन जाती हैं? ed लगाकर. walk, walked. clean, cleaned. look, looked. play, played. We played cricket yesterday. हमने कल क्रिकेट खेला था. She cleaned her room on Saturday. उसने सैटरडे को अपना रूम क्लीन किया था. सम वर्ब्स फॉलो नो रूल्स. अब ये ऊपर तो हो गई हमारे रेगुलर वर्ब्स की बात, राइट, कि सिंपल हमने ईडी लगाया, उसे सेकेंड फॉर्म में चेंज करा और हमारा आराम से सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस कन्वर्ट हो गया. ओके, अब कुछ वर्ब्स फॉलो नहीं करते कोई भी रूल्स को. दीज आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स एंड अ लिस्ट इज गिवन जिसमें सेकेंड फॉर्म टोटली डिफरेंट होती है. एंड अगेन यू हैव टू लर्न दीज फॉर्म्स कि अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए आ गया सेंटेंस, कि आपको एक सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है. अगर आपको सेकंड फॉर्म पता ही नहीं होगी, राइट, तो आप कैसे करेंगे? कुछ की तो हो जाएगी, ईडी लगा देंगे, लेकिन सबका ऐसा नहीं होता. कुछ इरेगुलर वर्ब्स की फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं एंड लिस्ट इज हियर. कम, came, go, went, see, saw, sit, sat, stand, stood, write, wrote, do, did, eat, ate, drink, drank, sell, sold, buy, bought, bring, brought, catch, caught, take, took, give, gave, meet, met, draw, drew, tell, told. Now have a look at these sentences. Mr. Octopus met Mr. Crab yesterday. Mr. Octopus Mr. Crab को कल मिले थे. इसमें met जो है, meet की देखो सेकेंड फॉर्म लगी हुई है. He told him some funny jokes. Now told is the second form of tell. They drank water from seashells. Drank is the second form of drink. So हम सिंपल पास्ट टेंस में किसी भी सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय सिंपली एडिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नॉर्मली ईडी लगाकर हो जाती है, लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब्स की टोटली चेंज होती है जिसकी लिस्ट मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी है. ओके, नाउ देयर आर ऑल्सो अ फ्यू वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज फॉर्म एट ऑल. अब इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो चाहे वो सेकंड फॉर्म हो, वो दोनों की दोनों सेम रह रही हैं. एग्जाम्पल्स आर गिवन. हिट, हिट. अब देखो फर्स्ट फॉर्म में भी हिट है और सेकंड फॉर्म में भी हिट है. कट, कट. हर्ट, हर्ट. शट, शट. पुट, पुट. कॉस्ट, कॉस्ट. अब आपके दिमाग में आएगा कि हाउ विल वी नो कि अब ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है या सिंपल पास्ट टेंस में है. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. आई पुट मिस्टर क्रैब इन अ वाटर टैंक एवरी नाइट. मैं मिस्टर क्रैब को वाटर टैंक में हर नाइट डालती हूँ. एवरी नाइट, राइट. और जब मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया तो हूँ आया. ओके, तो इसमें क्या है? दैट मीन्स दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पर पुट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के तरीके से यूज हुआ है. Now the second sentence, I put Mr. Crab in a water tank yesterday. मैंने Mr. Crab को कल water tank में डाला था, right? तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि put is used as the second form of the verb. Remember, we use the verbs was, were and had in the simple past tense. यहाँ पे simple past tense लिखा हुआ है, प्लीज़ इसका ये simple काट दीजिए. And now the sentences, we use the verbs was, were and had in the past tense. ये बताया गया है was, were और had words आपके past tense में use किए जाते हैं. And the examples are given below. Mr. Crab was on the beach last night. So was is depicting a past tense sentence. He had a piece of seaweed for dinner. अब इसमें had लगा हुआ है और देख लीजिए past tense का sentence है. His friends were waiting for him in the water. Were waiting लगा हुआ है, that means it's a past tense
sentence. So today we have studied two things. Number one, the helping verbs used in the different types of tenses, that is past, present and future. कि helping verbs के through हम लोगों को कैसे पता चल सकता है कि ये past tense है, present tense है या future tense है. और second हमने आज क्या सीखा? Simple past tense in detail and how is simple past tense formed. क्या rules applicable होते हैं और क्या rule होता है, that is हमें second form of the verb लगानी होती है. So this was all about the explanation part for today. I hope the concept is clear to you all. And now time for home assignments. For the homework you have to complete Let's Try 5 of your course book and My Turn 3, 4 and 5 of your practice book. Let me explain you. Let's Try 5 में आपको simply एक paragraph दिया हुआ है और आपको उसको past tense में convert करना है. My Turn 3 में you just have to color the blocks. Past tense के लिए आपको red करना है, present tense के लिए orange and future tense के लिए green. In My Turn 4, read the sentence, underline the verb and write its tense. कि आपको sentence read करके उसका verb underline करना है और उसका tense लिखना है कि ये कौन सा है. In My Turn 5, please see to it. It has 3 columns. Past, present and future. My Turn 5 आपको पूरा नहीं complete करना है. My Turn 5 में you just have to complete the first 2 columns, that is the past and the present. Future tense will be taught in the next class and then you will complete this table. Okay, My Turn 5 में you just have to complete first 2 columns, that is the past and the present, which have been taught to you already. Okay, so this was all for today. Stay at home, stay safe, bye bye, take care, see you all in the next session. Thank you.